Good morning, students. So we were learning about the life of people in the Iron Age. So let's start it. The discovery of iron brought about many changes in the life of people. The most important were farming was made much easier and settlements grew in size. Means mostly what they found the farming and settlements easier. How? Let us see. Agriculture. The discovery of iron brought with it the invention of iron tools. Iron axes were invented and used to clear forest for more farmland. Tools like iron sickles and iron plows were used for farming. ठीक है, so now they started to use iron. Okay. And iron axes invented. Now axes, you can see the picture down, iron axe. It was invented and it was used to clear the forest for farmland. As they have started farming, so now they were in use of clear lands. Okay, so at that time there was so much jungle, so they used this iron axes to clear the jungle, okay, for farmland. And they used iron sickles and iron plows were used for farming. You can see the picture of iron sickle which were used to cut and digging the land properly. Iron plows help to dig faster, better and deeper. Okay. Iron sickles help to cut down the ripe crops with lesser effort at a greater speed. तो वो लोग आयरन के प्लाउज और आयरन के जो सिक्कल है, सिक्कल यूज़ करके वो जो खेती होता था, ओके, दे वेर इट वाज इजी टू कट द राइप क्रॉप्स. ओके, जो खेती करके जो फसल आता था उसको काटने के लिए इजी हो जाता था. ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द आयरन एज वॉज इन्वॉल्व्ड इन फार्म वर्क. तो ऑलमोस्ट maximum all the people were involved in farming only. Wheat and barley are the two main food crops grown in large quantities during the Iron Age. So mostly they were producing wheat and barley in large quantities. मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो ये प्रोड्यूस करते थे. So this is all about agriculture. Now see about tools. Iron farming equipment including sickles and plows made land tilting more efficient. मतलब ये प्लाउज और सिक्कल यूज़ करके वो लोग लैंड पे खेती करना, खोदना, ये सब बहुत ज़्यादा इजी हो गया था. Now the people had spare time which was used in other activities such as crafting jewelry, sewing clothes and making salt. मतलब अभी उनको ज़्यादा काम करने का टाइम मिलता था. पहले क्या था, उनके पास स्टोन के या बोन के बने हुए टूल्स थे. ओके, एंड इट रिक्वायर्ड मोर टाइम इन डूइंग द वर्क्स. अभी उनके पास आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स है विच वाज इजी टू ऑपरेट. मतलब उनको चलाना, उनसे काम करना इजी हो जाता था. तो उनके पास बहुत सारा टाइम होता था, ठीक है, बच जाता था. तो उस टाइम पे वो लोग क्या करते थे, वो लोग ज्वेलरी बनाते थे, सीविंग क्लॉथ्स एंड मेकिंग सॉल्ट. नाउ दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड टू प्रोड्यूस सॉल्ट. ओके. ऑक्यूपेशंस, तो वो लोग काम क्या करते थे, व्हाट वाज देयर ऑक्यूपेशन. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, cattle rearing was also popular in Iron Age. So we have also learned about cattle rearing, that they have started to keep some animals. People kept geese, goats, herds of cow and flocks of sheep. People also worked as metal workers, carpenters, potters and artisans. The metal workers, जिनको बोलते हैं ब्लैकस्मिथ्स, मेड अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप. तो
अभी लोगों में देखो डिवीज़न होने लगा, कुछ लोग मेटल वर्कर्स बने, कुछ आर्टिस्ट बने, कुछ पॉटरर्स बने, कुछ कारपेंटर्स बने। ऐसा नहीं है कि सब लोग फार्मिंग कर रहे थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग फार्मिंग ओनली, बट सम ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन डूइंग अदर वर्क्स ऑल्सो। नाउ सी, अभी धीरे धीरे न्यू एज जो है वो स्टार्ट होने लगा है। नॉट ओनली फार्मिंग, दे हैव स्टार्टेड टू डू ऑल दिस थिंग्स। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप इज़ ब्लैक स्मिथ। मतलब वो ज़्यादा लोग, बहुत लोगों के ग्रुप मेटल वर्कर्स में काम करने लगे। The women were skilled at making earthenware vessels for cooking and for trading। तो बहुत लोग जो हैं, जो women है एक्चुअली, वो ऐसे earthenware मतलब जिसमें हम खाना रख सकें, ठीक है, खाने को या कोई भी चीज़ को इधर से उधर ले जाने के लिए जो होता है यूटेंसिल्स, वैसे चीज़ें बनाने में बिजी थे। The leader of the community had to train men for war। ओके, जो मैन होते थे उनका एक लीडर होता था, ठीक है। दे ट्रेंड द मैन फॉर वॉर। कभी भी कोई भी दूसरा ग्रुप आके अटैक कर सकता था, ओके। इसीलिए वो अपने ग्रुप को अच्छे से वॉर के लिए प्रिपेयर करता था एंड मेक श्योर दैट द मैन वे ऑलवेज अलर्ट एंड रेडी फॉर वॉर। और वो हमेशा श्योर रहता था कि उसके मैन जो है वो हमेशा अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखे। कभी भी रात को भी कोई अगर अटैक करने आए तो उसका भी वो लोग डट के सामना कर सके, ठीक है। सो हु डिड ऑल दिस? द लीडर ऑफ द कम्युनिटी। नाउ फूड, मोस्टली व्हाट दे यूज्ड टू ईट। The daily diet for most people in the Iron Age was a combination of bread, porridge and stew। Bread and porridge you all know। Stew means some kind of soup, ठीक है। वेजिटेबल सूप में भी, या फिर व्हीट का या बर्ली का कोई सूप बना के वो लोग पीते थे, ओके। नाउ जस्ट रीड अबाउट द houses and hill forts। By the end of the Iron Age, people lived in hill forts। मतलब पहले हम देखते थे ना कि राजा महाराजा जो हैं या फिर वो लोग सब हिल के ऊपर रहना उनको ज़्यादा पसंद था, हिली एरियाज, ठीक है, ऊंचे ऊंचे फोर्ट्स में। These forts were surrounded by walls and ditches and warriors protected their people from outside attacks। और जो वॉरियर्स होते थे वो अपने लोगों को दूसरे लोगों से हमेशा प्रोटेक्ट करते थे और अपने जो जहाँ पे वो लोग रहते थे उसके ऑल अराउंड वो बाउंड्री लगा देते थे, बड़े बड़े वॉल्स बना देते थे। डिचेस मतलब जहाँ से पानी जाता रहता था, बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं चारे कोर और उसमें से पानी जाता रहता है, ठीक है। सो डैट उसको क्रॉस करके कोई उनके बिल्डिंग में घुस ना सके, वॉल को क्रॉस करके कोई घुस ना सके, ठीक है। इनसाइड द हिल फोर्ट्स पीपल लिव्ड इन राउंड हाउसेस। तो वो लोग उस वॉल्स के अंदर वो लोग फोर्ट में रहते थे और जहाँ पे उनके हाउसेस जो होते थे सब लोग छोटे छोटे हाउसेस में रहते थे, वो उनके हाउसेस राउंड राउंड होते थे, ठीक है, गोल गोल राउंड राउंड। Most of Iron Age tribes lived in these round houses that had just one big room। और उनके हाउसेस जो हैं उनमें एक ही रूम होता था and it is mostly round। They were built using nearby materials from the forest। और वो लोग वो सब बनाने का सामान जो नियर बाय फॉरेस्ट होता था उसी से ही लाते थे। The walls of the round houses were made using wood, straw and mud। तो वो लोग अपना घर किससे बनाते थे? वुड से, लकड़ी से। स्ट्रॉ यू ऑल नो ना, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो होती है, हाँ वो या फिर कोई सूखे पत्ते जैसे होते हैं जिसको हम घर के ऊपर छत के जैसे रख सकते हैं, ठीक है। एंड मड मतलब गीली मिट्टी से, जैसे कभी हम गांव में जाएंगे ना तो बहुत सारे रेयर गांव्स में ये सभी घर हमें दिखने को मिलती है। सो ऑलवेज दे यूज टू लिव इन दिस राउंड टाइप ऑफ हाउसेस, ओके।
Thank you. We will read the other part of the chapter in the next video. Thank you.